think about what is the contributions. Okay, so first point, when you are writing, if I'm asking to Tapan, you have written the B category paper, what is the contribution? If you ask to Pushpreet, Pushpreet, you have make the synopsis, आपको क्या लगता है कि आपके synopsis की क्या contribution है? ये first point होता है, you have to study about your search. Okay, these things you have learned number of times, but not keep in your mind. So this is the search process. At first point, we define the search problem. At second point, we go to the review of literature. Then we make the formulations of hypothesis, analysis the data, collect the data, search sampling, designing, testing hypothesis, generalization and interpretation, preparation and report and thesis. So this process repeat again and again. You must have understand when you are on the making your synopsis. So you are that time defining your search problem. Okay, when you are everybody from you is is in the any one of these stage. Either he or she is testing your hypothesis or analyzing the data. So this is the process you should keep in your mind always. So where to publish? This is the more question important. ऐसे हमारी यूनिवर्सिटी में तो पीयर रिव्यू से काम चल जाता है, बट इफ यू गो फॉर द जॉब ऑन हायर साइड, so you have to think beyond the peer review journals, like where you have to publish. So first of all, basis on the database. There is the two type of database basically we follow. One is called Scopus, another is Web of Science. Okay, so if the journal is indexed in these databases, then your publication seems some good quality publications. In India, we follow also ABDC listed journals. This is a list. If the journal is incorporated in the ABDC list and we publish their article, then it's also worthy. UGC list is no more worthy. Okay. Or you can also understand some base of publisher. You are publishing in Elsevier, Emerald, Sage, Indersight, and good quality publishers. So you have to opt the upper two things if you want to go for the good job: Scopus, Web of Science, ABDC. And this is the requirement in every private university, IIM, IITs. If you publish in ABDC or Scopus or Web of Science index journals. Okay, so somebody asked me कहाँ पब्लिश करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे पुष्प्रीत है, पुष्प्रीत अभी स्टार्टिंग स्टेज पे अपने रिसर्च के, न्यामुतुल्ला है, ये सारे लोग हैं, जमालुद्दीन, तो कहाँ पब्लिश करना है, हरप्रीत सर कहाँ करना है, प्रभजीत ने कहाँ पेपर पब्लिश करना है. तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम you have to go for the Scopus or Web of Science. Okay, so next I'm sharing before publication of your article, you must have understanding some basic concepts. For example, you know what is the types of research: exploratory, descriptive, and experimental. So we have talked a lot about descriptive research, exploratory research, and experimental type is not a part of our research. Basically, in psychology or in sciences, we use the experimental type of research. We know the conceptual framework. What do you mean by review? What is hypothesis development? And how we underpinning the theory. So all these things you should know before writing the paper. Sample and sampling design, sampling techniques, probability sampling technique, non-probability sampling techniques. All these things you must know before the writing. Scaling, what is scale, what is construct, what is the questionnaire. This is the basic knowledge you must have acquired. Citation and references. So you know about citation and references. What is insight citation, what is references, what is bibliography. You know about the plagiarism, you know about the use of AI, basic statistics, you know what is assumptions, what is parametric technique, non-parametric test, statistical software, Excel, SPS, Jamovi, Amos, SmartVL, SR, other software like Tin, Mendeley, Grammarly, Shai Magor, SearchGate. So basic knowledge of these things you must have before writing a good quality journals. So are you with me? Are you with me? Yes, sir. Yes, yes. Manjot, if you kindly, maximum people kindly on your videos, it will give me good motivation to me. Yeah, no, are you sleeping?
So Sukhpreet is also there. So I'm sharing. This is very important. These things you should understand before writing your research papers. Okay. So segment of research art. What are the segments of a research articles? So these are the basically segment of any research articles, or you can say of your thesis. When you're writing your paper, so all these segments are compulsory. All are equally important. सो आप क्या गलती करते हो? कुछ डिस्कशन नहीं लिखता, कोई कंक्लूजन नहीं लिखता, कोई लिमिटेशन नहीं लिखता, कुछ किसी का तरीका अलग है। ये मेरा तरीका है कि ये सारे सेगमेंट्स तो होने ही चाहिए उसमें। दीज ऑल सेगमेंट्स शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द योर आर्टिकल। लाइक टाइटल होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, कीवर्ड, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथड, एनालिसिस, डिस्कशन, कंक्लूजन, लिमिटेशन एंड रेफरेंसेस। अगर आप ऐसे ये सेगमेंट सारे आपके हैं ना, तो एडिटर्स आर वेरी सेटिस्फाइड, दे विल पुट योर पेपर आउट ऑफ द डेस्क रिजेक्शन। ओके, सो दिस सेगमेंट शुड बी देयर। सो फर्स्ट सेगमेंट इज द टाइटल। टाइटल कैसा होना चाहिए? टाइटल शुड बी रिप्रेजेंट द होल ऑफ द रिसर्च। बड़ा कैची सा टाइटल होना चाहिए। इन टाइटल यू शुड हैव टू वर्ड द एब्रिएशन। It should be short and effective, and it should be easy to understand. Not use a very complex word in the title. Okay. So, for example, your title representing what you are doing. For example, determinants of e-banking adoption from the customer's perspective, an empirical study. Mediating role of self-efficacy. I have given the example of my papers. Okay. So, title should be very simple and precise. Abstract and keywords. So it should be limited as requirement. So abstract should be as per the requirement of the journal, or it should be, for example, if 250 words, then 250 words. If 100 words, then 100 words. No English and grammar mistake, especially in abstract and abstract. Okay. Highlight the main things of your search. It should represent all your search work. Keyword should be very specific. सो आपके लिए टिप्स है कि आप 10 गुड क्वालिटी जर्नल के अब्स्ट्रैक्ट पढ़िए फॉर दैट पर्पस। सेगमेंट, अब्स्ट्रैक्ट एंड द कीवर्ड्स। नेक्स्ट, format of abstract. I love this format of, this is the basically format of the Emerald. So this is, there should be purpose in format, रिसर्च मेथड्स होना चाहिए, फाइंडिंग्स होनी चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होइए, बट इट मस्ट बी अ सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए ये सारी। ओके, इट मींस प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पहले नहीं होनी चाहिए, पर्पस होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, फाइंडिंग होनी चाहिए, वैल्यू क्या है आपकी, तो वो चीज भी इसमें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मेट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट है। सो इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन में देयर शुड बी, यू डिस्कस योर वेरिएबल्स. You have to give a importance why you opt this variable and significance of important of variable, why your variables are important. Okay. Objective of the studies should be there in introduction, and gap analysis we can incorporate. And how we do this, basically we analyze the literature and we choose what to write and considering word limit, but it should be not very healthy. There should be a specific writing in the introduction segments. Okay, so objective of the study should be very clear. In the thesis, you can write 4 or 5 objectives, but in the articles you have to stick to only 1 or 2 objectives. Objective should be very clear and precise. Avoid too many objectives in research writing. Okay, in the research articles, not in the thesis. Objective should be framed from the research problem formulation. Present objective in the study smartly. Smartly means the reader should know where is the objective of your study. Okay. So example is to study the impact of motivation on the performance from the it should be smartly placed into the articles. Okay. Till this PPT, you have any doubt regarding? यू नो वट, मैं मतलब एज आपको एडिटर बताता हूँ क्या प्रॉब्लम। मैं बड़ी शेयर करता हूँ आपके साथ ना अपना एक्सपीरियंस बीइंग अ एडिटर ऑफ सम जर्नल्स। कुछ पेपरों में पूरे सेगमेंट्स नहीं होते, तो पहला पॉइंट होता है डेस्क रिजेक्शन का वो। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज के सेगमेंट्स तो है,
अब्स्ट्रैक्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा, ठीक है। तीसरा, पेपर तो आपने बहुत अच्छा लिखा है बट आपने ये चीज नहीं लिखी भी उसकी लिमिटेशंस कितनी है। फॉर एग्जाम्पल जनरल बोलता है कि 8,000 वर्ड चाहिए मुझे, आपने 10,000 का लिख रखा है तो पहले रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ज्यादा वर्डन हम नहीं दे सकते Yes. पब्लिशर। ओके, अगर अगर जनरल रिक्वायर्ड 750-100 वर्ड्स, तो यू शुड बी प्रिपेयर योर आर्टिकल फॉर द 7,000 वर्ड्स। okay, if they required 7,500 words, then you have to plan how to present all the things in this limited structure। okay, और टाइटल आप बड़ा गलत सा लिख देते हो, बड़ा इमोशनल होकर टाइटल लिख देते हो। ओके, और जूस करा करो कॉलन जब भी आप वो लिखते हो ना टाइटल। ओके, और टाइटल मतलब 20 वर्ड से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो ये सिर्फ आपने बहुत अच्छा काम किया है, अपना सारा कुछ अच्छा काम किया है, फिर भी वो आपका पेपर रिजेक्ट हो रहा है, उसका रीजन यही होता है कि आपका काम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है पर प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम अच्छा नहीं है। पहले खाने से पहले जब हम देखो कुछ भी स्वीट्स लेने जाते हैं वो दिखाते हैं ना हमें, हम वही चीज को ऑप्ट करते हैं ना जो हमें अच्छी लगती है। एडिटर भी ऐसे ही होते हैं, एडिट किसी के पास टाइम नहीं है, वो सिर्फ मेन मेन चीजें देखता है कि पहले फॉर्मेट के हिसाब से है, ठीक है। और आपकी रेफरेंसेस एंड साइटेशन की गलती है, कोई उसको वेटेज ही नहीं देता। अच्छा एडिटर सबसे पहले रेफरेंसेस एंड साइटेशन पढ़ता है कि इस पेपर को लिखने के लिए बंदे ने कितना पढ़ा है। मतलब बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन, मेरे स्टूडेंट ही पूछते रहते हैं, सर पेपर तो बहुत अच्छा है पर डेस्क रिजेक्ट हो रहा है। क्योंकि आप, मैं दो चार चीजें आपको और टिप्स बताता हूँ कि जिसमें आपको, जब उन्होंने पेपर रिक्वायर मांगा था उसने सारा कुछ मांगा था, कवर लेटर भी मांगा था, सप्लीमेंट्री फाइल भी मांगी थी, अपेंडिक्स, आप अपेंडिक्स नहीं देते आपने जिस कौन से क्वेश्चन आपने यूज किया है। आप कभी सप्लीमेंट्री फाइल देते ही नहीं हो, मेरे को नहीं लगता आप में से कोई सप्लीमेंट्री फाइल पब्लिशिंग के लिए देता है। सो ये चीजें जो इस सेगमेंट तक इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेगी, कम से कम ये सारे सेगमेंट तो जरूरी चाहिए उसमें। I hope you are comfortable with the Hindi or go for the English. Comfortable? Any problem, anybody? So now I'm forwarding. Uh, After objectives, gap analysis. So we have to find the maximum gaps in your search problem. So these are one method. There are the studies in relationship of A and B, but they are the other study of relationship between B and C. But you can put a gap. There is a no relationship study into A and C. This is a one gap for descriptive study. One example for another for exploratory study, exploring financial procrastination, a new term. For example, you are conducting any new type of research, new creating any variables. Then you can identify that this type of behavior is not previously studied. For example, I'm using one digital prudence. Digital prudence means how smartly you are using your digital device. So these types of the variable you have to identify. Most common mistakes you conducted, you always give only one gap. If this study is not conducted in Mohali, this study is not conducted in Patiala. There are so many types of the gap, like evidence gap, knowledge gap, practical gap, construct gap, methodology gap, empirical gap, theoretical gap, population gap. So कोई भी गैप आप इसमें से देख लीजिए, नॉलेज गैप है, कंस्ट्रक्ट गैप है, so you should have to provide that. Not should be focused on this geographical gap that this studies is not conducted in Mohali or Panchkula. Okay, so you should give the maximum gaps. So review of literature and hypothesis development segment. This is a very, very important after introduction. So how we write this? Find the study related to your search problem. Find the theory related to your search problem. Follow main author of specific topic. Recent study should be incorporated. Use your logic where study are not available. Make a hypothesis based on the literature. Avoid test-based hypothesis. Hypothesis should be specific. So what it means? When you are writing your view of literature, so you have to find the related study to your search problems. Okay,
एंड आल्सो फाइंड द थ्योरी रिगार्डिंग टू योर सर्च प्रॉब्लम। हर एक टॉपिक के कुछ मेन ऑथर्स होते हैं, आपको उनको सर्च करना पड़ता है। कोई फाइनेंशियल सेल्फ एफिकेसी पे काम कर रहा है, फाइनेंशियल नॉलेज पे काम कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई 5-6 मेन ऑथर होंगे, तो आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, उनकी स्टडी को फॉलो करना पड़ेगा। रिजल्ट स्टडी जरूर इनकॉर्पोरेट कीजिए उसमें। जहां आपके पास लिटरेचर अवेलेबल नहीं होता वहां पे लॉजिक यूज कीजिए। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है मेक हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द लिटरेचर। तो क्या प्रॉब्लम होती है? तो मोस्ट व्हाट इज द प्रॉब्लम? जब आप हाइपोथेसिस बनाते हो ना, तो हाइपोथेसिस आप नल में बना देते हो, देयर इज ए नो इफेक्ट ऑफ दिस। आप लिटरेचर पढ़ो कि लिटरेचर पढ़ के क्या लग रहा है हाइपोथेसिस में, कि क्या हो सकता है हाइपोथेसिस। देखो हाइपोथेसिस एक होते हैं लिटरेचर बेस्ड, जैसे टी टेस्ट हो गया, नोवा हो गया, इनके ऑटोमेटिकली हाइपोथेसिस होते हैं नो वाले, हम वही बना देते हैं, देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ दिस। उनको अवॉइड करना है। आपका लिटरेचर क्या बोल रहा है? लिटरेचर में 10 स्टडीज बोल रही है कि ए का बी के साथ रिलेशन है, बिना झिझक आप बनाइए हाइपोथेसिस उसका। और प्रॉब्लम कहाँ आती है? आप काम करके कॉन्फिडेंट नहीं होते, जब आपको पूछते हैं कि सर ये आपने हाइपोथेसिस कैसे बनाया, सर वैसे ही बनाया, तो यू शुड बी, मतलब आपका कॉन्फिडेंस इतना लेवल होना चाहिए। जी मैंने 20 स्टडी स्टडी की, 20 में से 18 स्टडी में, 18 स्टडीज में रिलेशनशिप है, तो इसीलिए मैंने अपने रिसर्च में ये हाइपोथेसिस प्रपोज किया है। और वो स्टडीज आपके साथ होने चाहिए, और जो भी आपसे पूछ रहा है उसको दिखा दो। सिंपल। क्योंकि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है आप डर जाते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए और बी का हाइपोथेसिस बनाया, उसकी कितनी स्टडीज हैं आपके पास? तो दिस थिंग यू शुड आल्सो कीप माइंड while यू आर क्रिएटिंग योर सर्च प्रॉब्लम। और वाई, अच्छा आपसे एज द एडिटर मैं पूछ लूंगा कि आपकी स्टडीज कहाँ है। जो भी काम किया है उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैं पूछूं, बट इट शुड बी विद यू। सिमिलरली फॉर द थीसिस, आपका डाटा एनालिसिस किया, डाटा का डाटाबेस कहाँ पे है? कुछ लोग क्या करते हैं, किसी बाहर से डाटा एनालिसिस करा लेते हैं, वो करके अच्छा सा दे देते हैं, ठीक है। बट जब वो कहीं बार किसी डिपार्टमेंट में वो पूछ लेता है एग्जामिनर जो आपका वाइवा लेने आता है कि डाटाबेस दिखाओ जिस पे आपने एनालिसिस किया है, ठीक है। तो ये चीज तो भाई अब रिस्की है, अगर आपके पास डाटाबेस नहीं है तो टोटली लॉस्ट है ना आपका। तो ये चीज आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि आपके पास डाटाबेस भी होना चाहिए जिसके ऊपर आपने एनालिसिस किया है। ओके। एक मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपने बच्चों के साथ, जब भी मैं क्वेश्चनर बनवाता हूँ उनसे 2-3 कंस्ट्रक्ट ऐड ऑन करवा लेता हूँ। उसका रीजन ये होता है कि आप लाइफ लॉन्ग एक बार तो डाटा इकट्ठा करोगे, उसमें से 1-2 पेपर और लिख दोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो सो आगे है हमारा लिटरेचर व्यू पे वी प्रपोज सम मॉडल। So this is our conceptual model, and when we underpin the theory, so it becomes the underpinning of the theory. So what theory support to the model, and what is my conceptual framework. So this is the way when you represent your hypothesis, okay, with the model. Okay. So next question is search methods. So search methods और methodology में हम क्या लिखते हैं? We put our focus on sampling design. सैम्पलिंग डिजाइन में क्या करते हैं हम कि मोस्टली सैम्पलिंग डिजाइन ऑब्जेक्शन का, मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्शन इस सेगमेंट से आती है, क्योंकि आपको सैम्पलिंग क्लियर नहीं होती, ठीक है। लाइक सैम्पलिंग टेक्निक इज नॉट अप्रोप्रिएट, why you opt this scale or construct sample is not appropriate, reliability and validity issues। तो ये 3 चीजें तो लिखनी ही है रिसर्च मेथड में। सैम्पलिंग डिजाइन क्या है, स्केल्स आपने कहाँ से अडॉप्ट किए, ठीक है, और प्रोसीजर क्या रहा। प्रोसीजर का मतलब आप कोई नहीं लिखता प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है कि आपका क्वेश्चनियर या स्केल कैसे अप्लाई हुआ, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, जब आप मिले थे, जब आप कैसे उसने आपके साथ इंटरेक्शन की। तो ये प्रोसीजर भी जरूर आप लिखिए व्हेन यू आर राइटिंग योर सर्च पेपर्स। नेक्स्ट है हमारा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सो यहाँ पे ये सेगमेंट्स जितने भी हमने डाटा एनालिसिस किए हैं उसमें ये चीजें आपने जरूर इनकॉर्पोरेट करनी है। डाटा करेक्टरिस्टिक्स, सो डाटा करेक्टरिस्टिक्स अबाउट मिसिंग वैल्यू, अनएंगेज्ड रिस्पांस, आउटलेयर, मल्टीवेरिएट और नॉर्मलिटी ऑफ द डाटा। रीजन टू ऑप्टेनिंग द टेक्निक, हम ये लिखते हैं ना कि पीएलएसएम क्या है कि डाटा नॉर्मल नहीं था, मल्टीवेरिएट नॉर्मल नहीं था, तो हमने ऑप्ट किया।
तो जस्टिफिकेशन देनी बड़ी जरूरी हो जाती है। अजम्पशंस ऑफ टेस्ट, जैसे हमने एमजीए करा है तो उसकी अजम्पशन मैंने बताई थी कि माइकॉम एक अजम्पशन होती है, वो जरूर डिस्कस कीजिए। और डाटा मैनिपुलेशन को अवॉइड कीजिए, पकड़ हो जाता है ज्यादा आप स्मार्ट इनफ हुई है, ठीक है। और कभी भी डाटा में या पेपर में आई वी माई वर्ड मत यूज कीजिए। बहुत सारे टेबल क्रिएट होंगे, उसमें से आप इंपॉर्टेंट टेबल ही लिखिए। बहुत ज्यादा टेबल देने की जरूरत नहीं है, वो सप्लीमेंट्री फाइल में डाल दीजिए। और टेबल वैल्यू रिटर्न वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और टेबल आपका आर्टिकल में साइटेड होना चाहिए, कि आप अगर आपने टेबल लिखा तो आर्टिकल में भी उसकी साइटेशन होनी चाहिए टेबल की। सो 10 रिलेटेड क्वालिटी जर्नल्स के कुछ 10 आर्टिकल्स का आप राइटिंग स्टाइल पढ़ लीजिए, तो ये आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कवर हो जाएगी। डिस्कशन सेगमेंट्स में क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिजल्ट्स लिखते हैं, उसके बाद कंपेयर द रिजल्ट्स विद लिटरेचर करते हैं, फिर हम देखते हैं कि साइट इंपॉर्टेंट स्टडी रिलेटेड टू द रिजल्ट्स, एंड केयरफुली लुक वेयर रिजल्ट्स आर डेविएटेड फ्रॉम द लिटरेचर, एंड फाइनली हम इंटरप्रेट रिजल्ट्स कर रहे हैं अपनी कॉमन सेंस के साथ। तो डिस्कशन में मैं फिर स्टॉप कर रहा हूँ। डाटा एनालिसिस में तो हमने ये जो तकनीक मैंने आपको बताई है। अब देखो मैंने आपको कितने पेपर शेयर किए, तकरीबन मेरे 64 पेपर है, जिसमें से मैंने आपको 40 पेपर ऑलमोस्ट शेयर कर दिए हैं। आपको आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जैसा भी पेपर अच्छा लगता है आप उसको पढ़ो, उसमें टेबल्स देखो। देखो ऑब्जर्वेशन, रिसर्चर और नॉर्मल बंदे में क्या फर्क होता है, उसकी ऑब्जर्वेशन ही होती है। आप उस पेपर को पढ़ो कि देखो सर ने कितने टेबल दिए हैं, मैं कितने दे रहा हूँ, सर का साइज कितना है। कई बार तो हम पीएलएस प्रेडिक्ट लिखते नहीं, बस सप्लीमेंट्री फाइल में दे देते हैं, ठीक है। तो जनरली आप कौन कौन सा टेबल इंपॉर्टेंट है, सारे पेपरों में देखो कौन कौन सा टेबल इंपॉर्टेंट है, कौन सा टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, और कौन सा टेबल है जो आप दिखाना चाहते हो बट आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, वो सप्लीमेंट्री फाइल में डाल रहे हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री फाइल तो आप बनाते ही नहीं हो, वो भी बनानी चाहिए आपको हमेशा, उसमें अपेंडिक्स होनी चाहिए कौन सी स्केल आइटम थी आपकी, ठीक है। तो ये चीजें जब आप करोगे तो जब एडिटर ये सोचेगा कि ये पेपर जब कोई तीसरा बंदा पढ़ेगा उसको ये तो पता लग जाएगा कि इसकी ये स्केल आइटम यूज किए हैं, अपने ये किया है वो किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट। और डिस्कशंस में क्या होता है, बेसिकली पहले आप रिजल्ट लिखते हो कि ये मेरे रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद उसका देखते हैं लिटरेचर के साथ कहाँ कहाँ मैच करता है, फिर पीछे चले जाते हैं। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, बेसिकली लिटरेचर रिव्यू तो ब्लड होता है, जैसे बॉडी में ब्लड होता है ना, हर जगह के लिए ब्लड चाहिए होता है, चाहे दिमाग हो हैंड हो, इसी तरह से रिसर्च में हर जगह के लिए लिटरेचर भी चाहिए होता है। तो देखो कहाँ पे चाहिए, थीसिस में। थीसिस आप लिखते हो कहाँ आपके कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स आ गए तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी रिसर्च गलत है, उसका मतलब ये है कि आपने उसको जस्टिफाई कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि दूध पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ठीक है, तो डेनमार्क में एक स्टडी हुई थी कि ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि डेनमार्क डेयरी बेस्ड कंट्री है, सारा दूध का काम है, वहां तो लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है। फिर जिस आप ऐसे जस्टिफिकेशन देते हैं, और कोई फैक्टर भी हो सकता है कि बंदा हो सकता है कि एक्सरसाइज ही ना करे, इस वजह से कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो आपने जितना जस्टिफाई करना है उतना आपकी रिसर्च की फाइंडिंग स्ट्रांग होती जाएगी। ओके, सो तो डिस्कशन सेगमेंट में ये हम काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन सेगमेंट। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में रिकॉल द रिसर्च गैप्स। गैप्स देखो क्या क्या निकाले थे आपने, उस गैप्स को कवर करने के लिए इम्प्लीकेशन दो। राइट केयरफुली इम्प्लीकेशन, वेरी स्पेसिफिक, जनरलाइज द रिजल्ट्स, मैच द स्कोप ऑफ द जर्नल। मान लो आपका जर्नल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर है कुछ, तो उसके साथ भी कोई मैचिंग प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जरूर देनी चाहिए। तो जनरल इम्प्लीकेशंस तो आपने कि ट्रेनिंग शेड्यूल कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन अगर किसी थ्योरी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। मेथोडोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस मतलब आपकी मेथोडोलॉजी गलत थी, आपने सही मेथोडोलॉजी लाई, तो ये आपकी मेथोडोलॉजिकल इम्प्लीकेशन भी हो जाएगी। सो इम्प्लीकेशंस भी बड़ी जनरलाइज एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा फ्यूचर स्कोप एंड लिमिटेशन। कंक्लूजन मिसिंग है, मैं बता देता हूँ। कंक्लूजन में आपने कंक्लूड करना है टॉपिक को कि ये रिसर्च प्रॉब्लम थी, ये हमने कंक्लूड किया है कि ए का बी के ऊपर इफेक्ट है। तो ये सेगमेंट आप छोड़ देते हो, बहुत ही कम वेटेज देते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें वो चीजें लिखनी होती जो आपने करनी थी और नहीं की।
ये भी इसमें कंट्रोवर्सीज आती है। मान लो फॉर एग्जांपल रखते हैं कि वी हैव टू यूज द 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल, तो बंदा पूछ सकता है कि आपने 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल क्यों नहीं यूज किया। ठीक है, तो स्कोप बड़े ध्यान से लिखना पड़ता है कि वो ऐसी चीजें लिमिटेशन में नहीं लिखनी होती जो आप कर सकते थे आपने नहीं की। और लास्टली जब भी आपका आर्टिकल क्लोज होता है एक अच्छी सी स्टेटमेंट से करो कि ऑल्दो देयर इज ए लिमिटेशन इन माय रिसर्च आर्टिकल, बट माय रिसर्च कंट्रीब्यूट इन दिस सेगमेंट इन अ वेरी इफेक्टिव वे, कुछ ऐसे। ओके, सो references, check the paper, citation references. Missing references can be reason of resection. Should be डिक्शनरी के हिसाब से हम लिखते हैं, शुड बी एज पर द गाइडलाइंस। तो पेपर सबमिशन की ये प्रोसेस होती है। जब आप सबमिशन कराते हो तो सबसे पहले डेस्क रिजेक्ट हो जाता है। अगर डेस्क रिजेक्ट से बच जाते हो तो रिव्यू में चले जाता है, एक या दो या तीन रिव्यूअर होते हैं, वो कमेंट देते हैं आपको, कमेंट के बाद फिर रिव्यू आर्टिकल हो जाता है और रिटर्न टू ऑथर हो जाता है। रिटर्न के बाद आप रिवीजन करते हो, रिवीजन के बाद अगर तो एक्सेप्ट हो गया तो फिर एक्सेप्टेड हो जाता है, फिर प्रोडक्शन में चला जाता है, फिर ऑनलाइन पब्लिकेशन हो जाती है, फिर फाइनल पब्लिकेशन हो जाती है। सो ये थे इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स। ठीक है, तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू और है आजकल कि हाउ टू यूज एआई इन दैट। एआई तो देखो वी आर वेरी स्मार्ट इनफ, और हम ठीक है, बट देखो एक स्टडी थी कि एआई यूज करने का मेथड क्या है। एआई यूज करने को आप मोस्टली राइटिंग में यूज करते हो, वहां पे गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि टर्न टेन सॉफ्टवेयर उसको पकड़ लेता है। तो कैसे उससे बच, क्या क्या एआई से हमने क्या करना है, एआई से ये पूछना है कि जो मैंने गैप लिखे हैं क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, और क्या एक्स्ट्रा गैप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने थ्योरी पिनिंग की है तो देखो कि ये मेरे 6 6 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 6 6 7 हाइपोथेसिस है, कौन सा हाइपोथेसिस किस थ्योरी के अंडर आता है। ओके, सो आप उससे पूछ सकते हो कि मेरा टाइटल ठीक है कि नहीं है। टाइटल भी कैसे पूछोगे कि आप रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिसर्च को नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज आप मतलब चैट जीपीटी जा तो आप बहुत स्मार्ट हो के पकड़े ना जाओ, अगर पकड़े जाते हो तो नेचुरली वो प्रॉब्लम हो जाती है, आप यू शुड बी यू कैन बी ब्लैक लिस्टेड। ओके, सो स्मार्टली यूज करना है उसको जब भी करना है, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है उसको यूज करने का। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा एआई बढ़ रही है उतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी बढ़ रही है। नाउ यूजिंग एआई इज इक्वल टू प्लेगरिज्म एज पर द न्यू गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द वर्कशॉप। ज्यादा नहीं करना चाहिए, हमेशा मैं इस थ्योरी पे रहा हूँ कि जितना मैंने उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री दिया था उसमें हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ कर लिया है, बाकी आपकी प्रैक्टिस है। तो अगर आपको कुछ फिर भी नहीं समझ लगता यू कैन कम गिव मैसेज इन द ग्रुप, तो मैं आपसे पर्सनली वन बाय वन भी आपसे मैं मीटिंग कर सकता हूँ आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। ओके, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सबको फैसिलिटेट करें, सब पेपर लिखें, अपना इंडिया आगे बढ़े। क्योंकि कहीं ना कहीं पे जब मैं रिसर्च करता था ये प्रॉब्लम थी तो मैं किससे बात करूं, मुझे यही नहीं था पता। और मेरी पीएचडी के बाद मुझे पता लगा था भी कुछ स्कोपस भी होता है। मैंने 12 1200 रुपया दे के पेपर पब्लिश करा रखे थे बहुत सारे, हरप्रीत। तो बाद में मुझे पता लगा कि भाई इन चीजों का कोई पर्पज नहीं है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो मेरा 100 पेपर है, मैं रिसर्च गेट पे 64 दिखाता हूँ, वो 100 वो वाले हैं, बाकी 36 पेपर वो है, कभी 1000 रुपया दे के करा लिया, पता ही नहीं था और कोई बताता भी नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी जिससे मैं पूछने जाऊँ उसको भी लिमिटेड नॉलेज थी। और ऑनेस्टली शायद मेरे स्टूडेंट जानते हैं सारे, और जितने भी मेरे डिपार्टमेंट में हैं, तो माई हाउस इज ओपन फॉर एवरीवन। इतना बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं जो वर्कशॉप लगा रहे हैं जो किसी और के स्टूडेंट्स हैं, बट उनके सिनॉप्सिस में कहीं ना कहीं मैंने हेल्प की है। तो मैं को अपने ऊपर प्राउड नहीं फील कर रहा, मुझे लगता है कि जो चीज मुझे नहीं मिली मैं किसी न किसी वे से दूसरे की हेल्प करता हूँ। तो आगे जब आपने नॉलेज लेनी है आपका भी यही मोटिव होना चाहिए कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी की हेल्प कर सको।
सो शेयरिंग नॉलेज मीन गेटिंग नॉलेज। अगर आप शेयर करते हो नॉलेज तो इट मीन्स यू आर गेटिंग द नॉलेज। ठीक है। तो सो दैट्स ऑल आई थिंक। बहुत कुछ है ऐसे तो मैं सारा दिन रात बोलते रहेंगे, कुछ खत्म नहीं होगा। मतलब मैं अब आपकी साइड से एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई आप कम से कम भी मुझे गुड मैसेज करना है कि मेरा पेपर एक्सेप्ट हो गया है। तो उसमें कुछ वर्कशॉप की कंट्रीब्यूशन रही है। और वो देखो, नथिंग इज ए कंप्लीट प्रोसेस। हो सकता है वर्कशॉप में भी कुछ लिमिटेशन रही होगी, कुछ आपकी तरफ से भी मुझे लिमिटेशन लगी है। जैसे मतलब आजकल के स्टूडेंट्स में ना वो नहीं है कि कैन यू इमेजिन, मैं आज भी वर्कशॉप लगाता हूँ, मुझे किसी अच्छे टीचर की मिल जाए ना तो बड़ी कंसंट्रेशन से लगाता हूँ। वीडियो मेरी ऑन होती है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वो आंसर करते हैं। तो मतलब आजकल रिसर्चर्स इसको इज ए ग्रांटेड प्रोसेस कि लगा तो रहे हैं कि जब कोई मेरा नाम बोलेगा तो देखो आपकी ड्यूटी है, आप सबने आके जाके पढ़ाना है, आप सबने आगे जाके रिसर्च स्कॉलर से टीचर बनना है, टीचर के बाद रिसोर्स पर्सन बनना है। तो जब तक आप किसी को सुन नहीं सकते, कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो आप प्रेजेंट कैसे कर सकते हो? दिस इज माई पॉइंट। तो ये तो आपकी फेट है, ये तो आपकी लकीलीनेस है कि मैं नाम लेके बोलता हूँ। इन फ्यूचर आपका कंपटीशन इतना स्ट्रिक्ट होएगा, आपको तो टाइम ही नहीं मिलेगा। आप देखो, जब आप आराम कर रहे हो ना, कोई दूसरा आपकी जगह ले जाता है। तो मैक्सिमम आस्क द क्वेश्चन, बी एक्टिव। तो कोई दो तीन स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा रिव्यू दे दो कि मुझे जो हमारे सनर्जी इंटरनेशनल, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये प्रोफेसर शाह है तमिलनाडु से, इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उन्होंने, उनके साथ मेरी बात हुई तो हमने दोनों ने मिलकर ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी। ही इज वेरी नाइस पर्सन। तो उन्होंने बोला था कि दो तीन अगर रिकॉर्डिंग में कोई रिव्यू दे दें वर्कशॉप के बारे में। एक तो तपन आप दे दो, एक हरप्रीत आप दे दो, एक आधा कोई और। ठीक है, तो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो दैट्स ऑल। आप राहुल मैम, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सिमरन कहाँ गई? सिमरन आज एक्टिव गुड इवनिंग सर। नहीं। हाँ, चलो आप हरप्रीत और तपन, आप दो कुछ रिव्यू दे दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल इफ एनीबॉडी सर एल्स वांट सर टू। मैं सर यस यस तपन। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू सो मच कि आपने इतना डेप्थ में वर्कशॉप कराई। द वर्कशॉप रियली स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, फ्रॉम द थिंग्स मैनी पीपल स्किप कि द रिसर्च प्रॉब्लम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, and then you focused on all the steps. Then to the advanced things like your higher order models, moderated mediation, and all of the analysis in smart pls, which I had only seen but never knew ki what they were. Also you discussed other softwares as well. Plus, you gave personal attention to everyone. You make sure that everybody was understanding. If somebody was lagging behind, then you did not hesitate to repeat again. And finally, this last session is one of the most helpful that many people do not know, like how to publish, because early stage researchers get a lot of desk rejections. And I think your entire workshop will help us grow a lot. Thank you to थैंक the यू, organizers and to you. थैंक यू वेरी मच। एनीबॉडी एल्स? राहुल मैम, Any- एनीबॉडी? यस अमन। Then you, Good evening, sir, and good evening to all. I'm very thankful to Synergy International and also you, Dr. Sandeep, sir. Uh, Firstly, the workshop is very needed to me personally because I am working on a research paper of my topic. So PLSM is what's needed for me, and I'm working on mediation हाँ, and moderator both in one paper, and this is also in my topic. And also the main thing that attract me, the underpinning of theory in the hypothesis that I have not seen in the papers, to and sir shown us that this is most importantly, and especially sir given us the knowledge about what is the requirement of editors of the journals. good evening, And sir. underpinning theory is one new concept that I have learned, and also new things in PLSM, and much appreciated is sir listen us patiently and attend every query patiently. Thank you very much, sir.
and Anybody I else? would like to associate with you in future also. Thank you. We are already associated. Every student is my Thank student. I think it. Thank you. Thank you very Anybody much, sir. else? Anybody else? So I think yes. Anybody else? Also, So More. I think in the last day people remains very busy. So thank you very much again. तो मतलब इसको की के लिए वर्कशॉप मत की एक आपकी फैसिलिटी है, मतलब इससे आप आपको डाटा एनालिसिस खुद करना है अपने थीसिस का, अपने रिसर्च आर्टिकल्स का। और देखो रिजेक्शंस आर द रिजेक्शंस आर द वे ऑफ सक्सेस इन रिसर्च। अगर आप रिजेक्शन लेते हो मैं बड़ा खुश होता हूँ, और वो भी रिजेक्शन विद कमेंट, आपको पता लगता है कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। तो एक दो चीजें और आप दिमाग में रखना, एक अपना नेटवर्क जरूर बनाओ कि अपनी फील्ड के बंदे ढूंढो कि जिसके साथ पेपर लिख सकते हो। नंबर 1, आपका रिसर्च गेट पे प्रोफाइल होना चाहिए। अब लोगों से डरो ना, लोगों के सामने आओ। मैं मोस्टली ना फेसबुक पे डाल देता हूँ कि मेरा पेपर पब्लिश हुआ, तो मुझे बहुत सारे टीचरों ने बोला कि भाई आप तो बहुत अपने आप को शो ऑफ करते हो, ये करते हो। आई डोंट बॉदर अबाउट दिस। मैं इसको एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझता हूँ। पीपल नो टू मी, यार इसके पेपर आ रहे हैं, मैं वर्कशॉप का भी डाल दूंगा, तो मुझे किसी से लेना देना नहीं। मेरा पर्पस ये है कि लोगों को पता लगेगा कि ये बंदा काम कर रहा है, जब मैंने इसकी वर्कशॉप में आना है या कैसे करना है। दैट इज ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर मी। ओके। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि दिस इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग, तो दिस इज ऑल अबाउट द शेयरिंग द नॉलेज। ओके। तो नॉलेज शेयरिंग मेरा ऑब्जेक्टिव रहा है हमेशा से। और उसका अगर आप पर्सनली भी यू कैन मीट मी, गिव मी अ कॉल। आप में से कोई भी बंदा ऐसा बता दे जिसको मैंने आज तक कभी मना किया हो। शायद मुझे पता नहीं कौन किसका स्टूडेंट है, शायद जानवी मिले थे हम, है ना। तो बहुत सारे एनी मेरे यहाँ टाइम। तो बहुत प्रॉब्लम सर आपसे मिलके सॉल्व हुई उस दिन जब मैं आपसे मिलने आई। तो आई एम लिटिल कंफ्यूज, आई एम लिटिल मतलब डरी हुई थी, बट आपने मुझे काफी हेल्प की। तो इट वाज वेरी गुड, एंड आपकी वर्कशॉप लगा के मेरी काफी क्वेरी सॉल्व। थैंक यू सो मच सर। मेरा मेरा ये मोटिव है कि जब आपने सीख लिया है ना, तो आप दूसरों को सिखाओ। ठीक है, तो ऐसे करो। सो फाइनली थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। पुष्पप्रीत, कहाँ गया हमारा बच्चा? ये सबसे यंगर स्कॉलर है जो मुझे मिला है। पुष्पप्रीत, आर यू देयर? यस सर। कुछ सीखा कि नहीं सीखा? हाँ जी सर, बेसिक्स तो काफी क्लियर हुए हैं, बाकी तो प्रैक्टिस से ही होएगा। मतलब अगर आप अपने मॉडल को थोड़ा टेस्ट करके देखो ना, तो आप बहुत क्विकली पेपर राइटिंग में निकल जाओगे। और एक बात ध्यान से अपने माइंड में रखना, अगर आपके क्वालिटी पेपर पब्लिकेशन नहीं है ना, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपका पीएचडी में कुछ काफी डिस्टिंक्शन, पीएचडी में डिस्टिंक्शन यही होती है कि आपके पेपर कितने पब्लिश है गुड क्वालिटी जर्नल्स में। और सॉरी, पीयर व्यू तो हम डिस्कस ही नहीं करते ऑनेस्टली। पीयर व्यू तो मान लो यूजीसी की रिक्वायरमेंट है, अपनी रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा उसके ऊपर ही सोचना है हमने। पीयर व्यू तो 1200-1500 देके पब्लिश हो जाता है, उसके ऊपर नहीं फोकस करना। अगर आप दो दो पेपर भी लिख लेते हो ना, तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। दो तो एक मिनिमम क्राइटेरिया है, 4 पेपर होने चाहिए। फिर हम देखेंगे कि आपको कहाँ जॉब मिलेगी। ठीक है, तो पेपरों, यस सर। पीएचडी का मतलब होता है कि आप पेपरों पे फोकस करो। ठीक है? देखो हमारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क। मैं कुरिया का पेपर ए कैटेगरी में है मेरे साथ, एयानो के 2-3 बी कैटेगरी में है, हैरिस का है, नियामतुल्लाह भी हमने तैयार किया है सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू में। तो ये जो अफगानी स्टूडेंट्स है, दे आर नॉट क्विकर वन। ये मैंने इनको जीरो से तैयार किया है, बट नाउ दे आर कैपेबल टू राइटिंग गुड जर्नल्स। ओके, जब वो कर सकते हो तो आप लोग क्यों नहीं? अफगानिस्तान में सॉरी पॉलिटिकल कंडीशंस अच्छी नहीं है, बट वो भी सीख के लिख रहा है। नियामतुल्लाह पेपर पे पेपर लिख रहा है, हैरिस लिख रहा है, तो सारे कर रहे हैं ना काम। ठीक है, तो यू शुड आप, तो ये चीज तो आपको ये तो कंपल्शन है, आपने करना क्या है, बस यही काम है। अगर सर्च बोरिंग है तो बोरिंग है, बट ये काम जरूर करना है। हरप्रीत, आगे बढ़ने के लिए बेटा ये चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए।
सभी के लिए, ठीक है। तो यस सर। देखो, अदरवाइज डोंट टेक इट एज अ पैशन, ये चलता रहता है, क्योंकि रिसर्चर के पास होता है क्या है, डिस्कशन ही होती है, जितनी मर्जी करते रहो, है ना। बट कम विद द आउटपुट ऑलवेज। नेक्स्ट वर्कशॉप में कुछ प्लान कर रहा हूँ कि तकरीबन 6 मंथ के बाद लगाएंगे। कुछ टॉपिक सजेस्ट कर दो। मैं सोच रहा था कि SLR, मेटा एनालिसिस और क्वालिटेटिव रिसर्च, ये 3 टॉपिक 5 दिनों में कवर करेंगे। कोई और आपका सजेशन है टॉपिक्स के लिए? कोई और टॉपिक सजेशन जिसके ऊपर हम वर्कशॉप करा सकें इन फ्यूचर? तपन, एनी आइडिया कोई और वर्कशॉप यू थिंक अबाउट? सुखप्रीत? Can you guide on scale development a little in next स्केल workshop? डेवलपमेंट, हाँ, वो 3 दिन की वर्कशॉप हो सकती है, बट वो स्केल डेवलपमेंट पे ही होनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। फिर कुछ और मत करो उसमें। PLSM के ऊपर कम से कम भी 15 दिन की वर्कशॉप चाहिए। ये तो क्विकली में एक तो ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत होती, या तो ऑफलाइन हो। कुरुक्षेत्र में मेरा बड़ा अच्छा, वो मुझे बुला लेते थे तो हैंड्स ऑन सेशन करते थे, 3 दिन में खासा कुछ कवर हो जाता है। डेली 3 सेशन होते थे, 9 सेशंस में कवर हो जाता है। तो सुखप्रीत, अब आपने अपना मॉडल का डाटा इकट्ठा करके खुद ही टेस्ट करना है उसको, मॉडल को। हाँ जी सर, जरूर। हाँ, ठीक है। बाकी शोध गंगा में थीसिस देख लो, जैसे पाहुल मैम कह रहे थे कि राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, शोध गंगा में देखो PLS के कैसे लिखे हैं थीसिस। आर्टिकल लिख लिया तो सॉरी, थीसिस लिखना बहुत इजी हो जाता है। Develop. स्केल डेवलपमेंट करनी है वर्कशॉप? क्वेश्चन हाँ जी, हाँ जी, यस सर। बोलो बोलो। हाँ जी, हाँ जी, सर, मेरा एक हाँ जी, हाँ जी, सर बोलिए वन क्वेश्चन। क्वेश्चन की, जैसे सर हम रिसर्च पेपर्स की बात करते हैं, तो सर जैसे कि कुछ क्लोन्ड और प्रीडेटरी जर्नल्स भी होते हैं, तो सर उनको कैसे मतलब कि पहचानते हैं कि कैसे कौन सा रियल है अच्छे वाला और कौन से क्लोन्ड और उसमें प्रीडेटरी बेटा जर्नल्स वगैरह होते हैं? पहले तो स्कोपस की वेबसाइट पे जाकर चेक कर लिया करो कि जनरल स्कोपस में है कि नहीं है। दूसरा, एक शाई मागो साइट होती है, उसके ऊपर आप जाके जनरल का नाम डाल दो। जिस जनरल का H इंडेक्स नहीं है वो नहीं है अच्छा, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस है कि अगर आप ABDC में लिख रहे हो तो ABDC की लिस्ट में चेक करो वो जनरल है कि नहीं। सेम नाम टाइटल इज इक्वल टू। मान लो उसकी ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप निचले लेवल के जर्नल्स में पेपर लिखते हैं, ठीक है। जब आप सोचो कि मैंने पेपर ये जर्नल लिखना है, स्कोपस की वेबसाइट पे जाकर चेक करो कि जर्नल है, वहां पे एक प्रॉब्लम होगी, आपको ये भी पता लगेगा। जब जिस स्कोपस वाले क्या करते हैं, जिनका स्कोपस से बाहर होने वाला होता है ना जर्नल, वो क्या करते हैं, वो ओपन कर देते हैं कि 2000 में पेपर पब्लिश करा लो, 3000 में पेपर पब्लिश करा लो। तो इस पोजीशन में पता क्या होता है, तो फिर वो तब तक तो वो होता है स्कोपस में, जब आपका पेपर पब्लिश होकर आता है फिर स्कोपस में इंडेक्स नहीं होता, ठीक है। उसका पढ़ना पड़ता है कि कब तक वो जर्नल स्कोपस में था, ठीक है। तो ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज पे आपको काम करना चाहिए। हाँ जी सुखप्रीत, कोई क्वेश्चन है बेटा? जी सर। चलो सर हाँ जी बेटा। कि सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वर्कशॉप। स्केल डेवलपमेंट वाले में कितने रहो स्केल डेवलपमेंट में कितने कंफर्टेबल है, कितने के लोग हैं जो स्केल डेवलपमेंट की वर्कशॉप लगाना चाहते हैं? मिनिमम जो इस एनर्जी वालों का क्राइटेरिया 15 स्टूडेंट चाहिए। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बता देना, अगर 15 हो गए तो विल ट्राई 2-3 मंथ्स हम कर लेंगे, ठीक है। पर एक वर्कशॉप मैंने सोच रखी है, वो बेसिक्स पे करानी है कि जैसे SLR क्या होता है, मेटा एनालिसिस क्या होता है, और क्वालिटेटिव रिसर्च। और फिर नेक्स्ट ईयर जब हम वर्कशॉप करेंगे तो फिर मिक्स मेथड की बात करेंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को अच्छे पेपर कैसे लिखते हैं। ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ, बाकी पता नहीं, नथिंग इज परमानेंट, कल का क्या पता, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। बाकी ठीक है, चलो जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, लव यू ऑल, विश यू गुड लक, Thank you, Thank sir. you very much, sir. so much, sir. see you in the field. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Okay. See you.